Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Today we are going to start a new chapter number 8, A Genie Whom No One Liked. So this is the lesson number 8 of your course reader book. Have you heard the story of Genie and the magic lamp और चिराग का जिन? That means कि आपने कभी जिन की कोई स्टोरी सुनी है? Yes, I know you had listened about Aladdin and the magic lamp story. Yes, so did you know how the jinn came out of the lamp? पता है आपको कि उस स्टोरी में क्या हुआ था, कि कैसे बाहर आ जाता है? Yes, when someone rubbed the lamp, the genie used to come out. Genie of the lamp is known to fulfill the wishes of people. Genie क्यों जाना जाता है? क्योंकि he can easily fulfill all the wish in a sight. That means एक ही झटके में या एक ही मिनट में if everyone wish, then it can be fulfilled. So can a jinn be ever unhappy? So आपने ये सोचा है कभी कि जिन भी कभी अनहैप्पी हो सकता है? उसे तो हर समय हैप्पी होना चाहिए, बिकॉज ही कैन गेट एवरीथिंग. सब कुछ उसको बहुत ही इजीली मिल सकता है इन अ साइट. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ जिन हु वाज नॉट अनहैप्पी, हु वाज अनहैप्पी बिकॉज नो वन लाइक हिम. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर starting this chapter by reading the passages. So see the number 1. Once upon a time there was a jinn, but this particular genie was famous for spoiling things up. अब एक बार की बात, एक जिनी था, पर ये जो जिन था वो किसके लिए फेमस था? स्पॉइलिंग थिंग्स अप, यानी हर समय चीज़ों को खाली ख़राब करता रहता था, स्पॉइल कर देता था. Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता तो वो उससे बाहर आ जाता और क्या कहता कि "What is your wish?" Then a great cloud of smoke would appear. तब क्या आता सबसे पहले? जिन के आने से पहले ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक, यानी धुआं सा निकलता है, धुएं का बादल बन जाता है. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. और जब भी उसको कोई विश कहता, जब वो विश किसी की पूरी करनी चाहता, कोई चीज़ ला के देता, तो वो ऑलवेज डस्ट से क्या होती थी? फुलफिल रहती थी, भरी भी होती थी मिट्टी से. सो इतनी गंदी होती थी कि नोबडी वांट टू टच, इवन टच, तो कोई भी उसको टच तक नहीं करना चाहता था. सो सिली वर हिज मिस्टेक्स दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प. और उसकी इन गलतियों के कारण उसको कोई भी पसंद नहीं करता था, उसके मैजिक लैम्प को कोई भी पसंद नहीं. सो द जिनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर्स. अब बेचारा जिन उदास रहने लग गया और इस कारण वो उस लैम्प से बाहर ही नहीं आया बहुत सालों तक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स related from this passage. First of all, you have to write the passage, then you will do the question answers. So before starting question answers in your notebook, you have to read the passage over and over. That means you have to read it for 2 to 3 times. Then you will be able to understand the meaning. So let's start the question answers. Number 1 question is, the magic lamp was beautiful, clean, dirty or broken? कैसा था? Yes, it was dirty. What was the genie famous for? Yes, if you read it the chapter passage very carefully, you can easily find out the answer in the first line कि the genie was famous for spoiling things up. Okay, what would the genie say after coming out of the magic lamp? What would the genie say? बाहर आने के बाद क्या कहता था वो? Yes, the genie would come out and say, "What is your wish?" That is the answer. Okay.
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, वॉट वुड हैपन आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद क्या हुआ. आफ्टर द अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्नो वुड अपीयर, मतलब जब क्या होता था, बाहर आ जाता था तब वो क्या होता था, कमिंग आउट होने के बाद में अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर. वॉट वर ऑल थिंग्स इन द लैम्प कवर्ड विद, they were covered with dust. All things in the lamp were covered with dust. Why did nobody want to touch the genie's gift? Because they were dirty. Okay, and you can write the full answer कि nobody wanted to touch the genie's gift because they were dirty. What kind of mistake did the genie make? कैसी मिस्टेक करता था, द जीनी मेड सिली मिस्टेक्स करता था. ओके, सो सी द पैसेज नंबर 2 नाउ. वन डे अ लोनली बॉय नेम पंकज फाउंड द लैम्प. अब क्या होता है कि आगे की स्टोरी में कि एक बार एक पंकज नाम का लड़का होता है, उसको वो लैम्प मिल जाता है. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी, उसे उस जीनी के सैड क्राइज यानी दुख भरी और उदासी से भरी हुई जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती है. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. वो डिसाइड करता है चलो कि मैं इसका फ्रेंड बन जाऊंगा. द विश he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. अब क्या होता है, द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड, जो भी वो विश मांगता वो पूरी हो जाती. वॉज टू बी एबल टू एंटर, तो इस तरह वो उसके अंदर लैम्प के अंदर जा सका. एंड लीव द लैम्प, और वो लैम्प से बाहर भी आ सकता था. ये विश उसने ग्रांट की. द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, और जीनी ने बड़ी खुशी उसकी ये विश कंप्लीट करने की ठान ली. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स. पंकज फाउंड, क्या मिलता है पंकज को, अ बॉल, अ बैट, अ लैम्प, अ पेन. यस, अ लैम्प इज द राइट आंसर. What was the name of the boy? The name of the boy was Pankaj. What did the boy hear? क्या सुनता है boy? The boy heard the sad cries of Genie. Who was crying sadly? The genie was crying sadly. What did Pankaj decide? The Pankaj decided to become genie's friend. What wish did Pankaj express before genie? मतलब पंकज ने अपनी क्या विश एक्सप्रेस की, क्या बताया कि वो उसकी क्या विश है. पंकज विश टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प, मतलब उसकी विश थी कि वो लैम्प के अंदर और जा सके और बाहर भी आ सके. हाउ डिड जीनी फील आफ्टर ग्रांटिंग पंकज विश? पंकज की जो विश है वो ग्रांट करने यानी मानने के बाद उसे कैसा लगा. द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट पंकज विश, यानी पंकज की जो विश थी उसको पूरा करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था. बिकॉज कि समवन हैज़ फ्रेंड नाउ, अब उसका भी कोई दोस्त बन गया. सो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द पैसेज इन योर नोटबुक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू हैव टू रीड इट 2 or 3 times, then you have to do the question answers and don't try to cheat. First try to do it yourself. Now we move to the passage number 3. As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what the genie's problem was. यानी जैसे ही पंकज लैम्प में एंटर करता है, he could see what the genie's problem was, कि जीनी की क्या प्रॉब्लम थी. It was not that he was a bad genie, यानी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बैड जीनी था. इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि वो अनटाइडी रहता था, साफ सुथरा नहीं रहता था. इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस. जब उसने लैम्प में गया तो देखा कि हर कोई चीज़ ऐसे ही हर जगह फेंकी हुई पड़ी थी. वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल्स, मतलब
चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो या कैमल्स हो, यानी कुछ भी चीज़ क्या थी, व्यवस्थित नहीं थी, अरेंज्ड नहीं थी, एवरीथिंग वाज मेस्ड अप. इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स. और ऐसा लग रहा था एकदम साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं, क्लियरली पता चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो प्लेस है वो उसको कई सालों से साफ नहीं किया. पिकिंग अप एनीथिंग एंड द क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप. यानी कोई भी चीज़ को अगर पिक करो तो क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, यानी धूल के गुब्बार उड़ने लग जाते. तो ये जो था वो सीन किसने देखा, पंकज ने उस लैंप के अंदर जाके. सो नाउ you have to do the question answer. First of all you have to write the passage in your notebook, then you have to question answers. According to Pankaj, the genie was, कैसा था genie, bad, not bad, genius or none. That means the right answer is not bad, यानी genie गंदा नहीं था. Who entered the lamp? Pankaj entered the lamp. What was genie's problem? क्या थी genie की problem? The problem of the genie was that he was untidy, कि वो गंदा रहता था. What was the situation of things in the lamp? Everything was thrown all over the place in the lamp. सब कुछ क्या था, इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था. For how long had the place inside the lamp not been cleaned? The place had not been cleaned for years. What happened when he picked up anything in the lamp? A cloud of dust flew up when he picked up anything in the lamp. How long did Pankaj take to understand the genie's problem? As soon as Pankaj entered the lamp, he understood the genie's problem. So student, if you read the passage very carefully and try to understand what is the saying in the passage, you can easily do the question answers. Okay.